Very personal question that were you ever bullied in school being the daughter of a पान वाली because that time पे इतना reputed वो नहीं था business नहीं था so did you ever go through that? That's how from a very very small retailer, a pan wala, he turned the entire thing to an industry. 3 के बाद जब पापा passed away, उसके बाद भी साल 2 साल लगे सारी चीजों से उभरने के लिए कि नहीं फिर अब तो डिसीजन जो है पावर लेनी ही पड़ेगी वरना बिजनेस के अंदर बहुत चैलेंजेस आ जाएंगे. Is it true to say that you were the real developer for the pan industry? Yes, of course we take the pride in saying that 101%. बोलते हैं हमारी नसें काटो तो इसमें से खून नहीं निकलेगा, कत्था चूना निकल के आएगा. So when the real handover took place, when your father was still there with you, so was he still there with you, like looking after the business, or were you completely taking over it, or was there a still silent pressure on you कि नहीं अभी मेरे को प्रूव करना है पापा को कि मैं पूरा संभाल सकती हूँ? हाँ, मतलब ये जो नया आजकल एक फड्डा है ना कि तुम्हारी पैशन को फॉलो करो. यार पैशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है कि मैं आपको बहुत सच बता रही हूँ. मेरे पास 30-35 साल का एक्सपीरियंस है और प्यार भी पहली नज़र में नहीं होता है, चाहे वो काम से हो, व्यापार से हो, किसी चीज़ से भी. What do you think at what age would you like to retire and you would want your kids to take over then? That's a very beautiful question and I really want to pass out a message through your podcast, Charcha with Tavisha. लोग कहते हैं सबके पास एक कहानी होती है पर सुनता कौन है? Well, I do and if you're here, maybe you do too. Welcome to Charcha with Tabisha, where we slow down, lean in and really listen. This isn't just a podcast, it's a space for real stories, real emotion, real people, real chaos and the magic of being something bigger than yourself. We all grew up seeing pan as a familiar street side staple, but today pan has packaging, flavors, aesthetics and 300k plus people waiting for the next drop. The women behind this shift, none other than Miss Anu Lalwani Surana, or as we know her, Anu the Pan Wali. Thank you. She didn't just wake up one day with a business idea, but she netted something very beautiful from her father, who waited at the back seat and watched her grow the business with pride in his eyes. Today's episode is about that trust, love, relationship, and that leap of faith. We welcome you to the very first episode of Chacha with Tavisha. Thank you, Tavisha, for having me here and congratulations to start your podcast. Thank you so much. So before we go and start with the segments, we would also like to introduce a little about your business, Anu the Panwali, as well as Gamus Panchayat. Wow, thank you. Okay, great. I'm very grateful to my business. First of all, I would like to start from there. और मैं ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि ये मेरा बिजनेस के साथ साथ मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे माता और पिताजी का बिजनेस है और मेरे पिताजी ने अपने पिताजी से इनहेरिट किया. तो हम एक फैमिली बिजनेस हैं और इस देश का अगर आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पता हो तो इंडिया इज गवर्न्ड बाय 85% ऑफ फैमिली बिजनेसेस. सो वी आर अ पार्ट ऑफ दैट एंड दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट पान्स. आपने सलून सुना होगा, बुटीक सुना होगा, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, लेकिन पान इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कि बहुत छोटी सी चीज है जिसको हमारा देश समझता है कोने कचड़े में थूक कर एक तरफ कर देने वाला प्रोडक्ट है, पर मैं ये दुनिया को बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है. पान खाने से ना केवल शरीर हेल्दी रहता है, दांत हेल्दी रहते हैं, बल्कि अगर आप पान एज अ डेजर्ट को कंपेयर करोगे बाकी डेजर्ट से तो पान में लीस्ट कैलोरीज हैं, लीस्ट बीमारियां तो है ही नहीं. और आइसक्रीम और कुल्फी की मैं बात नहीं करना चाहती क्योंकि उसमें बहुत सारी चैलेंजेस हैं. तो मेनली हमारा बिजनेस तविशा पान का बिजनेस है, पान का व्यापार है जो हमारे पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से हमें मिला है. Lovely. So before this Anu Panwali became a name, जब आपके पास बस ये आइडिया आपके दिमाग में ही था, what was that day for you? Well, let's go back about 70 years back when daddy, my grandfather, who came from Sindh at the time of partition, there were many people in the family. वहाँ पे हमारी बहुत बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री थी और उसको छोड़कर पार्टीशन के टाइम पे इन सब लोगों को बॉर्डर के इस तरफ आना पड़ा. और वो आने वाली यात्रा तविशा बहुत चैलेंजिंग थी, बहुत डिफिकल्ट थी, जिसके अंदर कुछ लोग रास्ते में ही खत्म भी हो गए.
क्योंकि ट्रेन जो थी वो क्राउडेड थी, स्टैम्पीड था। एक सलमान की बहुत अच्छी फिल्म है, शायद उसके अंदर थोड़ा बहुत पिक्चराइजेशन उसका दिखाया गया है, पर दैट इज अगेन फार फ्रॉम वेरी ट्रू। फिर वहां से जब ये लोग यहाँ आए तो काफी कम हो गए। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अपनी सारी अच्छी बिलोंगिंग्स, गोल्ड, ज्वेलरी, पैसा सब वहां छूट गया। तो यहाँ आकर जब उनको अपने परिवार को पालना था, मेरे दादाजी को, तो उन्होंने एक छोटा सा खोखा खोला जिसके अंदर उन्होंने चाय और पान बेचना शुरू किया। एंड ऑब्वियसली फिर उसके बाद मेरे फादर आ गए, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर की शादी हो गई यहाँ पर। और देन माय फादर टुक ओवर द बिजनेस, एंड वेयर फ्रॉम दैट पॉइंट द एग्जैक्ट रेवोल्यूशन हैपेंड। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई पापा की शादी के बाद मेरी मॉम से। दैट टाइम पापा इनहेरिटेड द एंटायर बिजनेस, बट वो बिजनेस के अंदर भी उस जमाने में 1972 की मैं बात कर रही हूँ, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, क्योंकि डैडी के पास बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ मात्र 25 रुपए से उन्होंने अपना व्यापार, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दैट वाज ओनली 25 रुपीज। फिर वहां से शुरुआत हुई और फिर पापा ने पाउच कॉन्सेप्ट इस देश को दिया। पाउच जो कि एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है तविशा इस समय, जिसमें दूध पैक होता है, तेल पैक होता है, पानी पैक होता है, यू नेम इट एंड वी सी इट इन द पाउच। So he was recognized by Dr. Shankar Dayal Sharma. He was awarded the National Citizenship Award and the Pride of the Nation Award. That's how from a very, very small retailer, a pan wala, he turned the entire thing to an industry. And we were all over the country. And then voluntarily, we closed our gutka business, which we were doing in the year 19, like in the decade of 80s. पर ना 78 के अंदर उनको एक विजन थी, क्योंकि उन्होंने शुरू से पान की दुकान चलाई थी। और जैसा कि आज भी इतने सालों के बाद हम जानते हैं कि पान की इतनी वैल्यू नहीं है, तो उस जमाने में अगर चले जाओगे आप, योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, तब तो पान की रिस्पेक्ट होती ही नहीं थी, पान वाले की इज्जत नहीं होती थी। आज भी पान वाले के जो बच्चे हैं, जब उनका स्कूल में एडमिशन हम कराने जाते हैं तो उससे पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, और जब वो बोलता है कि मैं पान की दुकान चलाता हूं, तो उसको बहुत रिस्पेक्टफुल नजरों से नहीं देखा जाता है, स्टिल डेट टैबू है। तो उस जमाने में 1978 में ही सेड कि मैं एक ऐसी पान की दुकान बनाऊंगा जो दुकान नहीं शोरूम होगी, खुले में नहीं होगी, वो क्लोज्ड 3 वॉल्स के अंदर होगी, एयर कंडीशन होगा, और सबसे बड़ी कहानी मैं वहां ये करूंगा जहां विमेन को आने की इजाजत नहीं है, वो प्लेस मैं विमेन के लिए बनाऊंगा, विमेन एम्पावरमेंट दूंगा, एंड देयर द बिजनेस इज फॉर द वुमेन बाय द वुमेन, मतलब पान भी लड़कियां ही लगाएंगी। 1978 में इस दुकान का विजन वहां से शुरू हुआ। सो दैट्स द एंटायर हिस्ट्री, द स्टोरी। एंड fast forward to 1992 when Yamu's Panchayat was incorporated. How was Yamu's Panchayat? The name, how did you came up with the name? We searched many names like Europan, Beetlepan. We wanted to attach it to a modernized touch because we really wanted everybody to, you know, respect the profession because it's a very beautiful profession. It's an inherent हमारी हेरिटेज है ये। Yes, tradition. हाँ, मैं उसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कैसे ये पान कितना वैल्यूएबल है। राजपूत जब लड़ने जाते थे तविशा, तो महारानी पूरे एक थाल में पान के बीड़े लेकर आती थी, और सोल्जर को वो बीड़ा उठाने के लिए कहा जाता था, तो उसका सिंबल होता था कि मैंने यह बीड़ा उठाया है अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के लिए मर मिट जाने के लिए। सो दैट्स द सिंबल। और अगर आप हमारी पूजा देखोगे या कोई भी हम हवन करते हैं हिंदुत्व के अंदर, वो पूजा बिना पान के पत्ते और सुपारी के कंप्लीट नहीं होती है। And the pan leaf by itself has many herbal qualities. It's a natural kidney cleanser. And कैंसर की दवाइयों में बनाने में, उसको कैंसर को हील करने में पान के पत्ते का बहुत बड़ा रोल है। आप गूगल पे जाइए, लिखिए beetle leaf prevents cancer and there are articles on it and you can see it. Something so valuable, so nice. How can we just think कि उसको आपने खोखे पे रखा,
खाया और थूका और फेंक दिया, क्योंकि उसको बिल्कुल उस कल्चर से जोड़ दिया गया है. सो दैट्स हाउ वी वांटेड कि पान वाले का स्टेटस बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़े कदम की जरूरत है. इस पूरी सोसाइटी को एक अप लेवल करने की जरूरत है, और ऐसे आया यामूस पंचायत. Okay, So that's the that's why mission. Yamus Panchayat came. Lovely. Yeah. So, were you always very sure about that you will be the only one जो take over करेगा यामूस पंचायत, और were you indecisive कि नहीं मैं और भी ideas लेके चलूंगी? Okay, here we go another story. That's what we are here for, real stories. So sweet. तो हम स्कूल में 12th क्लास की बात बता रही हूँ, एंड आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम फादर एंगल स्कूल. इट्स अ वेरी नाइस स्कूल. तो हमारे प्रिंसिपल साहब फादर करवालो क्लास ले रहे थे, और वो पूछ रहे थे सबसे कि ये बताओ कि तुम लोग क्या क्या करोगे अपने जीवन में. व्हाट आर यू गोइंग टू डू, लाइक हु इज गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, हु इज गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर. सो एवरीबडी ही वाज आस्किंग. सो व्हेन ही आस्क्ड मी द क्वेश्चन, I said, Father, I'm very clear. I have to join my father's business. चाहे मैं पान वाली बनूं, गुटके वाली बनूं या पान मसाले वाली बनूं, but I'm very clear I'm going to help my father. So right from the day one, I was very clear कि मुझे मेरे डैड का काम ही देखना है. Okay, so you're very sure that you will Yeah, be the yeah. future CEO I was. of Yamus I'm not the Panchayat. job material. Not the corporate life, not for us. So, No. a very personal question, that were you ever bullied in school, या आपने कुछ ऐसा फेस करा हो being the daughter of a पान वाली, because that time पे इतना reputed वो नहीं था, business नहीं था. So did you ever go through that? Touchwood, by the grace of God, ऐसा कुछ हुआ नहीं. I don't carry any kind of a weird or a negative story. As you mentioned that you have 4 siblings, 4 Yes, sisters. we are 4 sisters. So was it a problem that you faced कि अंकल को लगा कि who will take over the business, कि उनका son नहीं है, or was he always very proud of the 4 of you? I think he's born with a vision to empower women. I still hold him as a visionary, as a women empowered. आप देखो जब वो 2017 में गए, तो 2015 में उन्होंने बड़ी क्लियरली लिख कर रखा हुआ था डायरी के अंदर कि उनका अंतिम संस्कार उनकी बेटियां ही करेंगी. That is so nice. Yeah. So he was very clear कि अगर बेटा नहीं भी है तो चिता में अग्नि का जो वो रहेगा वो बेटियां ही करेंगी. So he is born for women empowerment right from the beginning. I still remember कि मेरी मदर के पास उस जमाने में भी वो राइट्स होते थे जो शायद उस जमाने की औरतों के पास नहीं होते थे. Like we are from a very conservative family, but she was allowed sleeveless, she was allowed dresses, and she was a very very outgoing lady जिसका ना पर्स हमेशा भरा रहता था कैश से उस जमाने में भी. Like the entire business was in her name, like my mom's name. My father till date did not own even a bank account. Before Anu Panwali became a name, there was just Anu. Yes. So what's the story behind her? A very very simple story again. Like 2018, when the internet was really exploding, you know, and everything, we were a total offline shop, Tavisha. Okay. And हम क्या था कि हम word of mouth से famous हुए. और हम कैसे famous हुए 1994 में, तब आप लोग तो you guys are not even born, तब ATN करके एक चैनल आता था, जैन आता था. और तब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पूरा जब हम खोला था पूरा लिबरलाइजेशन के लिए, तब कैंपा कोला बहुत पहले होती थी, लेकिन फिर पेप्सी आई, फिर कोक आई, फिर प्राइवेट चैनल्स आ गए दूरदर्शन के साथ साथ. तब वहां पर कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसने इसको कवर नहीं किया. कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं था, रीजनल न्यूज़पेपर नहीं था कि पान 3 दीवारी के अंदर एयर कंडीशन में बिक रहा है. सो दैट्स हाउ वी बिकेम फेमस. तब हमें मीडिया ने फेमस कर दिया. Will it be true to say that you were the real developer for the pan industry? Yes, of course we take the pride in saying that 101%. क्योंकि पान को समझने के लिए जो एक दिल चाहिए, हम बोलते हैं हमारी नसें काटो तो इसमें से खून नहीं निकलेगा, कत्था चूना निकल के आएगा. तो such a lovely line. हाँ, लाइक पान को ट्रेडिशनली चौरसियाज ने बहुत वेटेज और प्रेस्टीज दी है, पर एक मॉडर्न टच, ताकि आप जैसे यंगस्टर्स यू नो वहां जाते हुए शर्माए नहीं. यू शुड फील गुड अबाउट हैविंग अ पान. तभी हमने उसको चॉकलेट कोट कर दिया और उस तरीके से. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 2018 तक वी वर स्प्रेडिंग फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ. सो देयर वाज नॉट अ ह्यूज स्प्रेड एंड इंटरनेट वाज एक्सप्लोडिंग.
So we said now we need to be online. We are enough of offline, मारवाड़ी कंपनी. अब हमें ऑनलाइन जाना है ताकि गूगल पे कोई यामू पंचायत लिखे तो बाकायदा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा नाम आना चाहिए. That's when we decided to jump into Instagram. And of course पहले पापा फेस थे बिजनेस का, और हमने ये रियलाइज कर लिया था कि 2018 और 19 के अंदर बिजनेस के अंदर अगर आप एक फेस नहीं लाओगे, आप एक इमेज नहीं लाओगे तो बिजनेस को करना इतना आसान नहीं होगा. सो दैट्स फ्रॉम वेयर, विद द हेल्प ऑफ माय हस्बैंड हु टोल्ड मी कि तुम एक काम करो, तुम सीधा लिखो अनु द पानवाली. तो इट्स हिज सजेशन, हिज आइडिया. The credit goes to him. Yeah, he is a very supportive person. मैं जरूर एक बात बोलूंगी इस पॉडकास्ट की मदद से. आजकल लड़कियां बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गई हैं और शादी करने के अंदर उनको लगता है कि नहीं शादी नहीं या ये पार्टनरशिप नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है एवोल्यूशन हमें ये बोलती है कि नहीं, पार्टनर जरूरी है, कंपेनियनशिप जरूरी है, क्योंकि आप एक हार्ट टू हार्ट शेयरिंग किसी से करते हो वो बहुत आवश्यक होता है. और उसके अंदर उस यात्रा में अगर आपको एक सपोर्टिंग हस्बैंड भी मिल जाए, द जर्नी बिकम्स मच इजियर. सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ सपोर्टिंग हस्बैंड and he has always supported me. कुछ लोग होते हैं ना, लड़के होते हैं, आपने जरूर नोटिस किया होगा कि उनकी गर्लफ्रेंड या उनकी पार्टनर जो होती है ना, थोड़ी सी अगर आगे जा रही होती है ना तो कहीं ना कहीं जेलसी आ जाती है, और वहां पर रिश्तों में खटास आती है, रिश्तों में चैलेंजेस आते हैं. सो दैट वे आई फील अगेन आई एम ब्लेस्ड. और शांतम को लगता है कि नहीं, अगर अनु आगे है तो उसको बहुत खुशी होती है. That is so sweet. That is so sweet. And also blessed with 2 beautiful daughters, Levana and Lenisha. So again, shout out. Future generation for yes, Yanis the 4th generation legacy. Yeah. So now we have already touched your personal life. We'll go more deep in that. When your father passed away, that was very emotional period for all of you. Very, very emotional. Very emotional. So how did you take over the responsibilities? Did he make a will? Did he assign you responsibilities, or you had to go through so many discussions? And what was the journey for you? Yeah, the journey was difficult, Avisha, because देखो जब वो गए वो he was only 65, and none of us were ready for his passing away. And it was very sudden because बहुत healthy थे, लास्ट तक स्विमिंग करते थे, जिम जाते थे, and suddenly he fell from the bed and ऐसे कुछ बहुत बड़ा एक वो एपिसोड हुआ. तो of course will नहीं थी, कोई क्लियरेंस नहीं था, उनकी कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे जिनको कोई क्लैरिटी नहीं थी कि कौन लीडरशिप आके टेक ओवर करेगा, कौन ब्रांड को टेक ओवर करेगा. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद फिर माय मॉम टुक ओवर, एंड माय मॉम देन वी ऑल हैड टू सिट डाउन टुगेदर with very and many awkward discussions. Then we had to really like find out कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा. और उसके अंदर फिर एक बहुत शुरू से ही क्लैरिटी थी कि यामूस पंचायत जो है वो मेरे पास और मेरी जो छोटी सिस्टर है रशिका, हम लोग टेक केयर करेंगे उसका. बाकी अलग सारी चीजें थी. बट हाँ, ऑफ कोर्स इट वाज अ डिफिकल्ट जर्नी, इट वाज एन ऑकवर्ड जर्नी. और एक विजनरी जब अपने बहुत टाइम से पहले अगर निकलने की तैयारी कर लेते हैं तो एक पीछे वालों के लिए अच्छी खासी एक डिफिकल्ट जर्नी होती ही है. To lighten up the mood, what is that one favorite memory of you, of your childhood, with your parents, with your grandparents, anyone? I was the favorite one for everyone. क्योंकि being the eldest, कोई था ही नहीं, कोई छोटी बहनें नहीं थी, कोई भी नहीं था, तो बस हम ही हम थे. हम ही हम थे. The younger ones can relate. देखो भाई, आई एम रियली सॉरी, उसके बड़े होने के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, लेकिन मेरे को ऐसे लगता है कि भाई ज्यादा फायदे होते हैं. देखो, दादी का प्यार मिलता है, नानके में रहने को मिलता है, मामों का प्यार मिलता है, मासी, क्योंकि आप पहले होते हैं तो सारी मासियां मामे सब यंग होते हैं, दादा दादी भी यंग होते हैं, कोई बहुत बुजुर्ग नहीं हो जाते तब तक वो लोग, है ना. तो इट्स लाइक इट्स अमेजिंग. व्हाट्स दैट वन मेमोरी ऑफ योर जहाँ पे आप सोचते हो कि यार व्हाट इफ मैं ये कर लेती तो शायद चीजें अभी मुश्किल या डिफरेंट होती मेरे लिए. Oh my God, I can't think of that. Totally fine. What would I be except for a पानवाली? क्योंकि यार मैं पढ़ी भी नहीं ज्यादा, तो I'm like, what do I do? हाँ, पर मुझे ये भरोसा जरूर है कि अगर आज की तारीख में everything evaporates, बस मुझे एक ठेला दे देना,
चाय का सामान दे देना और पान का सामान दे देना, I'll make it work. So pan is your life. We'll just sum it up in one line. Yeah. Lovely. Uh, So when the real handover took place, when your father was still there with you, so was he still there with you, like looking after the business, or were you completely taking over it, or was there a still silent pressure on you कि नहीं अभी मेरे को प्रूव करना है पापा को कि मैं पूरा संभाल सकती हूँ? देखो इस पे ना मैं अगेन आई वांट टू गो बैक लिटिल बिट टू इंडियन स्टैटिस्टिक्स. हमारे ना एज आई टोल्ड यू कि हम 80-85% फैमिली गवर्नड कंट्री हैं, बिजनेस गवर्नड कंट्री हैं. यहाँ पर ना बड़ों के साथ एक छोटा सा चैलेंज आता है. जो बड़े होते हैं ना वो बहुत जल्दी पावर्स नहीं छोड़ते. Like they don't want to leave the powers, and we can see it in our political status also. Like lot of leaders you can see they don't want to give away powers very easily. तो उसमें क्या होता है, जो यंगस्टर्स होते हैं वो खुलकर एक डायनामिक यंग एज में काम नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि बड़ों को लगता है कि मैंने अपने खून पसीने से ये बिजनेस को बिल्ड किया है. और डाउट्स होते ही हैं बच्चों पर कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगी कि नहीं पाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो लड़का नहीं लड़की है ना, और लड़कियों को हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए होती है. तो मैं ये कहूंगी कि while I was into the business, my dad was into full power. I have always worked under him. And उससे एक थोड़ा सा छोटा सा ड्रॉबैक ये भी हुआ कि मैं उनके नीचे काम करना, मुझे मतलब मेरी आदत पड़ गई कि मुझे कोई बोलेगा तो मैं काम करूंगी, या मुझे कोई डिक्टेट करेगा तो मैं काम करूंगी. उस चीज से उभरने में मुझे बहुत समय लगा. और उसके बाद जब 2017 के बाद जब पापा पास्ड हुए, उसके बाद भी 1-2 साल लगे सारी चीजों से उभरने के लिए. फिर बाद में समझ आया कि नहीं, अब तो डिसीजन जो है पावर लेनी ही पड़ेगी, वरना बिजनेस के अंदर बहुत चैलेंजेस आ जाएंगे. लाइक वी कैनॉट लेट लूज द बिजनेस बिकॉज दैट्स द बैकबोन. हमको पता था कि पान को हमने एक रुतबा देना है, हमने एक स्टेटस देना है और पूरे देश का कल्याण करना है. मैं तुम्हें इस बात के दौरान एक सीक्रेट और दे देती हूँ. Exclusively on the Chacha with Amisha. यस. वो ये है कि देखो सैलून्स इतने हैं, बुटीक्स इतने हैं, बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, पर पान वाले बहुत लिमिटेड हैं. Why do you think that there is no competitors for you in this industrial field? सबसे पहले तो पान की रिस्पेक्ट करने वाले इतने सालों की जर्नी के अंदर भी ऐसे लगता है अभी भी बहुत कम लोग हैं. अभी भी पान को बहुत रिस्पेक्टेड फैमिलीज के अंदर थोड़ा सा मुंह लाल करना और खराब सी चीज को सोचा जाता है. और ऐसा लगता है कि पान खाते क्यों हो, जबकि पान के इतने फायदे हैं. नेचुरल फ्रेशनर है, वो लिस्ट्रिन और ट्राइडेंट और पता नहीं कौन सी च्युइंगम्स है, उसकी जगह एक छोटा सा पान खा लो तो मुंह इतना नेचुरली फ्रेश हो जाता है. पर अभी भी फैमिलीज हैं. What would you say कि आपका लाइफ में सबसे बड़ा लेसन कब था और क्या था? That changed your perspective towards life. Anything, it could be when your father passed away, when your mother took over the business, handled it all alone. Yeah, lot of things changed after Papa passed away because तब तक बच्चे ही थे हम. तब तक ऐसा लगता था पहाड़ के साथ में खड़े हुए हैं. So I think that's a very big lesson कि माता पिता का जाना बच्चों के लिए at any age is a very big challenge. Yeah, that's a small story. I'll also share that. When my नानी was there, तब हम भी छोटे होते थे. So we were more into cousins के साथ खेलना, ये करना. So इतना उस टाइम पे we did not spend time with her. So there was this one story जहाँ पे नानी घर पे आई हुई थी and me and my sister were there. And हमने कुछ तो ऐसा करा होगा कि हमने उनकी बात नहीं सुनी, वो बहुत गुस्सा हो गई. And then मम्मा जब अपने काम से वापस आई, she's like, नानी was like कि अब तो मैं आऊंगी नहीं यहाँ पे. Oh my God. I am done. अब मैं आऊंगी ही नहीं यहाँ पे. And we were like कि शायद तो ये तो सीरियस ही हो गया, तो बहुत ही सिचुएशन बढ़ गया है. So we were like कि हम क्या करें? We are very young, गिफ्ट नहीं खरीद सकते, कुछ ऐसे तो है नहीं कि पॉकेट मनी डेली मिल रही है, nothing like that. So what we did, we made a very big card for her. उनके एल्बम से फोटोज निकाली, वो लगाया, and then we gifted her ना. She had tears in her eyes. Oh my God, I can so relate to it. It still makes me emotional कि our parents, our grandparents don't matter. उनको materialistic चीजें नहीं matter करती कि हमने कोच का बैग दे रहे हैं, इसका बैग दे रहे हैं. In the small things that we do for them. Yeah. So it's always कि your parents should be happy कि प्राउड होना हो, बस खुश होके जाए कि एक अच्छी लाइफ करके गए हैं. So sweet, so sweet. It makes me also emotional. Yeah.
really. Chalo, lighten up the mood. So how was the journey from 10 followers or 100 followers to now that you've recently achieved 300k followers? We would also say congratulations for Wow, that. thank you, It's a thank very you, big thank you, journey and thank so you. proud of you. Thank you, thank you, thank you. Yeah. So the journey, I would like any inspiring person, aspiring person, जो भी आना भी चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, देखो चाहे 10 फॉलोअर्स हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, मेरे को अपनी जर्नी जो याद आ रही है, मैंने जब पहला पोस्ट डाला था तो अपने घर के सिर्फ प्लांट्स का डाल दिया था। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैंने पोस्ट डाली, अगले 5-7 मिनट में 40 लोगों ने देख लिया। आई वाज लाइक रियली, मैं तो घर पे बैठी हुई हूँ और तुमने मेरे पौधे देख लिए 40 लोगों ने। I was like, really, wow. You know, that inner child who doesn't know much of internet, much of Instagram. It's like, wow, यार. I told my husband, तो शांति में ये बड़ी अजीब दुनिया है यार, 1 मिनट में इतने सारे लोग देख लेते हैं, वाह यार. So now then, I started posting. I did not stop there. फिर then I got another person with me, Arshan. He's the guy who's actually looked after our Instagram page. तो मैं अभी थोड़े दिन पहले ना अपने आर्काइव्स देख रही थी। मैं देख रही थी कि जब 100 फॉलोअर्स थे तो भी मैं स्टोरी में बड़ा इंस्पिरेशन से पैदल चलते हुए, एफर्मेशन डालते हुए और थैंक यू बोलते हुए चलती थी। फिर जब 1000 हुए तो भी, फिर 10,000 हुए तो भी। तो मतलब हर पोस्ट पे एक हैप्पीनेस और एक जॉय और एक एक्साइटमेंट, एंड ऑफ कोर्स मेरे पास फियर और वरीज वैसे भी एज अ बेसिक नेचर ना, मेरा फियर और वरीज मेरे पास नहीं है, जो कि आजकल बड़ा कॉमन है कि व्यूज मिले कि नहीं मिले, इतने कम क्यों मिले, उतने ज्यादा क्यों मिले। वो मेरा एक थोड़ा सा गॉड गिफ्ट है या मेरे फादर और मदर की एक वो है, ब्लेसिंग है या जर्नी। Did you ever had the feeling of getting the fake followers just to make an Instagram presence or no? No. आई थिंक इट वॉज वेरी क्लियर, क्योंकि बिजनेस का जो बेस है ना, वो शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म रहा है, जहाँ के अंदर डिसऑनेस्टी, जीरो लॉयल्टी, वो सारी चीजें बिग क्रॉस है। और लॉयल्टी इतनी ज्यादा है इस बिजनेस के अंदर कि अब वो छोटे छोटे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं उन बड़े बच्चों के छोटे बच्चे हो गए हैं। तो दैट फेक फॉलोअर्स वाला तो इट्स अ वेरी, आई थिंक शॉर्टकट्स कोई भी बिजनेस हो, कहीं पे भी हो, अब नर्सरी या केजी के बच्चे को हम 5th की कॉपी दे देंगे तो आप सोचो उस बेचारे का क्या हाल होगा। What is that one lesson you have learned in your business that you would like to now share it with the young entrepreneurs? There are many lessons I can go on and on and on. देखो सबसे जरूरी तो मैं कंसिस्टेंसी आपको बता ही चुकी हूँ कि देखो रोज दुकान पे जरूर जाओ, फैक्ट्री में जरूर जाओ, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ने कॉलेज जरूर जाओ, लाइक हर चीज को रोज करो। हालांकि रोज एक ही चीज करने से हम सब जानते हैं हम बोर हो जाते हैं, बोरियत हैंग आउट आ जाती है, पर जाओ जरूर, चैलेंजेस को फेस जरूर करो। अगर आपने जॉब शुरू हुई है उसको बहुत प्यार करते हुए, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ जाकर उसको, क्योंकि मेरे हिसाब से जो कहते हैं ना ये पैशन का गुणगान और ये वाली सारी चीजें, यार ये नहीं होता। ठीक है, मुझे पता था मेरे को मेरे फादर का बिजनेस देखना है, पर वो पैशन नहीं थी। मतलब ये जो नया आजकल एक फड्डा है ना कि तुम्हारी पैशन को फॉलो करो, यार पैशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये मैं आपको बहुत सच बता रही हूँ, मेरे पास 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, और प्यार भी पहली नजर में नहीं होता है, चाहे वो काम से हो, व्यापार से हो, किसी चीज से भी हो। Was it your first time? Yeah, like previous experience थे, but उसमें you were not that lucky. यार अब मैं ये क्या ही बताऊं और कैसे बताऊं। नहीं यार, me and Shantam met at a very right age because Shantam was also studying. I was handling my father's business. I was too occupied with my father's business, and as a youngster, आज के youngsters का एक era बहुत अलग है। उस age में बहुत कंट्रोलिंग होती थी पेरेंट्स की। लाइक आई एम टेलिंग यू, हमें फिल्म देखना अलाउड नहीं था जाकर थिएटर में। आई एम अ डॉटर ऑफ अ मैन हु has worked for women empowerment, women freedom, women liberalization. Still, रात को जाना अलाउड नहीं था।
ज्यादा लड़कों से बात करना अलाउड नहीं था। आप बिजनेस के लिए अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ आना जाना कर सकते हो, पर अगर आपको पार्टी जाना है अलाउड नहीं था। लाइक इट वी हैव लिव्ड इन अ वेरी डिफरेंट एरा, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी फार। अगर आप एग्जैक्ट बात करोगे तो 25-30 साल की भी कहानी नहीं है ये, पर हम लोग बहुत कंट्रोलिंग पेरेंट्स के साथ बड़े हैं, पले हैं, तो इट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। ओनली मी एंड शांतम मेट, और हमारी शादी हो गई 3 महीने में, एंड 1.5 साल में लेवाना आ गई, 3.5 साल में लेनेशा आ गई। So at what age did you guys get married? I was 27, I think, and Shantam is younger to me, so he was about 24, I think. Yeah, Okay, he's much lovely. younger Another to me. example. Yeah, he's much younger to me. He's much younger to me. So I would personally say by looking at your journey कि आपने सबके लिए बहुत sacrifices करे हैं. Like currently also you're living alone for your businesses. आपने अपनी daughters को भी बाहर भेजा to get the best education. Your husband is also working out. Who is that one person जिसने आपके लिए सबसे ज़्यादा sacrifice करा है? My parents, my mom. मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पेरेंट्स के अलावा हमको नहीं लगता कि कोई और आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है. The entire credit goes to your parents, daily my see parents, your Levana's parents. parents, yeah, everybody. Daily you see your parents doing the struggle and then you realize कि ये Yeah. सब हमारे लिए तो कर रहे हैं. Exactly. Yeah. And what do you think, at what age would you like to retire and you would want your kids to take over Yes, then? that's a very beautiful question, and I really want to pass out a message through your podcast, Charcha with Tavisha. देखो बड़े बड़े बच्चों जो मेरे उम्र से ऊपर थोड़े और बड़े हो गए हो, सॉरी, I'm still young. this goes to all a shout out to the parents. I think एक टाइम डिसाइड कर लो जब like you're in your mind कि now I want to retire. I want to retire and I want to do certain things which maybe I have ignored not doing or anything. And it's always good to give lot of freedom to youngsters. You, my daughters, your friends, all your team, Misha, Anushka, all of you guys should get lots of freedom from the parents. क्योंकि मैं देखती हूँ कि तुम लोग इवॉल्व वर्जन हो, जैसे एप्पल होता है ना, जो 6 आया फिर 7 आया फिर 8, तो हम सबसे तुम लोग इवॉल्व वर्जन हो. और बाकायदा जो फ्रीडम हमको नहीं मिला डिसीजंस लेने का, टाइमली तुम लोगों को वो फ्रीडम मिलना चाहिए और हमको एज पेरेंट्स देना चाहिए. एंड तुम्हारा हक है वो, तुम्हारा राइट है वो, कि देखो ये हमारे डिसीजंस हैं. और हो सकता है कि आप यंगस्टर्स उन डिसीजंस में कभी कभी गलती भी कर जाओ, पर जो चीज आप गलती करके सीखोगे वो मेरे सिखाने से शायद नहीं सीख पाओगे. You learn from your own mistakes. या एक बार एज अ पेरेंट ऑफ दिस एरा, ऑफ दिस एंटायर एज, आई फील कि हम पेरेंट्स को आपको बहुत फ्रीडम देना चाहिए और हम शायद देते भी हैं. I agree. Most of the parents have changed their parenting style to adjust with this generation also. So true. Because now we find our best friends in our mother and father only, Yes, rather yeah. than going outside. हमें होता है कि हम उन्हीं जाके सब बताएं Oh, चीजें. so true, yes. That is something our generation goes through. Lovely. So you would say your parents did the most sacrifice for you. Maximum. I don't see anyone else. I don't. I mean, like, I give a lot of credit to my husband and my children, but when it comes to sacrifices, and I think only parents do it. I don't know. Your daughters are gonna, I think, text you इसके बाद कि मम्मा हो गया हमारा तो. So yeah, sacrifice is a very big word. Yes, I think that suits parents. I don't know. I agree. Yeah. What is that one trait of yours, a negative trait that you don't want your children to take it? Overgiving. Okay. Overgiving. I don't want Levana and Lenisha to have overgiving. Yeah, that's very bad. Overgiving, as you give an example where you felt that काश मैं यहाँ पे ये नहीं करती चीज. मेरे को लगता है हर ही जगह पे ओवर गिविंग कर देती हूँ, चाहे वो स्टाफ के साथ हो, चाहे वो फैमिली के साथ हो, या होता है, या मेरे को लगता है यार विमेन का एक नेचर ही होता है शायद. आई थिंक अब यंगस्टर्स शायद उसको चेंज कर रहे हैं. मेरी मॉम का नेचर भी ओवर गिविंग था, मेरी सिस्टर्स भी काफी हद तक ओवर गिविंग हैं. आई थिंक ओवर गिविंग एक लिमिट तक ठीक है. If we wrap up this segment, what would your future success, what is the smell of success for you? कि Wow. मुझे ये अचीव करना है, that's it, कि आपने अगर ये अचीव कर लिया ना तो my journey has been successful. Lovely.
For me, I have this in my head that of course I want to hand over this amazing, beautiful legacy to my children. Then it's up to them how far they want to work, and they have the full freedom not to also work. You know, because there are certain times in a business, in a family business, जहाँ पे ना आप बहुत बाउंड भी कर दिए जाते हो कि देखो तुम नहीं चलाओगे तो कौन चलाएगा, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा. तो वहां तक आते हुए मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज की क्लैरिटी है कि अगर मेरी आने वाली जनरेशन विच इज लिवाना एंड लिनेशा, दे वांट टू कैरी इट फॉरवर्ड, आई वुड लव टू सी देम कैरिंग इट. एंड इफ दे फील नहीं ममा वी आर वेरी हैप्पी विद चिल्ड्रन एंड दिस एंड दैट, लाइक आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट ऑल्सो. लेकिन जो मेरा पर्सनल है, मेरा बहुत क्लैरिटी है कि आई एम गोइंग टू वर्क टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ. Okay. Even if I leave some projects incomplete, even if I leave few things not yet completed, I would be satisfied at least I started. I kept working, because for me, as if you talk of me as a person, for me it's very important to keep working. Like for me, rest and is not the key. I think this is the problem with your generation. कि आप लोगों को रेस्ट करना. That is very true. I see my mom, उनके अगर Saturday Sunday कभी भी छुट्टी होती है, she used to have headaches. घर पे बैठे बैठे कि मैं करूँ क्या करूँ. And I'm like, रेस्ट करो, go to a salon, कुछ तो करो. What is this कि मैं रेस्ट क्या करूँ यहाँ पे? That is the problem with your generation. But I love it if you guys feel that. For me as a person, yes, I want to work till the last breath of my life. Yeah. And with this, we come to the end. I would like to say that pan used to be the last bite before every meal, but with you, it started to become a movement. And the first bite with Chacha with Tavisha. This episode left you with goosebumps or hunger pangs. If it made you think about your roots, your parents, or the idea that you have been sitting on, it's your time to start it. This is Chacha with Tavisha. Do follow, share, like, and subscribe. And thank you, Tavisha, for allowing me here to speak at your platform. And I wish you all the best. Thank you so much. Oh, Mania. Oh, बहुत ज़्यादा thanks. You make. यार तुम्हारा मेरा तो कल ही हो रहा रिकॉर्ड. भाई मेरे को It started with my grandfather, Shri Kamchandji, जो partition के बाद आए. We not present such a beauty to India. Please, 5 minutes. Thank you so much. Thank you. Let's go.